السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں حکومت نے ان لاک 3 کے رہنمانہ ہدایات جاری کیے ہیں، جن میں غیر کنٹینمنٹ علاقوں میں مزید سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اسکولز، کالجز، میٹرو ریل سروسز اور سنیما ہالز 31 اگست تک بند رہیں گے اور سیاسی و مذہبی اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی۔ 25 مارچ کو کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد سے پہلی مرتبہ حکومت نے 5 اگست سے یوگا انسٹیٹیوٹس اور جمنازیم کھولنے کی اجازت دی، جس کے لیے وزارت صحت علیحدہ معیاری طریقہ کار جاری کرے گی۔ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے ساتھ سرگرم مشاورت کے ذریعے اسکولز، کالجز اور تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم رات کے وقت افراد کی نقل و حرکت پر پابندیاں برخاست کر دی گئی۔ ان لاک 3 ہدایت پر 1 اگست سے عمل ہوگا اور کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن پر سختی سے نفاذ 31 اگست تک جاری رہے گا۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق بورڈ امتحانات آسان بنائے جائیں گے، نصاب میں کمی کی جائے گی، کم از کم 5ویں جماعت تک مادری زبان یا علاقائی زبان میں تعلیم دی جائے گی۔ مرکزی کابینہ نے قومی تعلیمی پالیسی کو منظوری دی ہے۔ ان اصلاحات کی وضاحت کرتے ہوئے اسکولی تعلیم کی سیکریٹری انیتا اگروال نے بریفنگ کے دوران کہا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے لیے بورڈ امتحانات جاری رہیں گے، لیکن کوچنگ کلاسز کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے سدھار لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بورڈ امتحانات کو اس طرح سے استنو ترتیب دیا جائے گا کہ مجموعی ترقی کی حوصلہ افزائی ہو۔ بنیادی صلاحیتوں کی آزمائش کو اختیار کرتے ہوئے اسے آسان بنایا جائے گا۔ تمام طلبہ کسی بھی تعلیمی سال و موقع پر بورڈ امتحانات لکھ سکیں گے۔ طلبہ 3ری، 5ویں اور 8ویں جماعت میں امتحانات تحریر کریں گے، جنہیں مناسب اتھارٹی کی جانب سے منعقد کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے مطابق 10 اور 12 ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے گا اور انہیں بالترتیب 3 تا 8، 8 تا 11، 11 تا 14 اور 14 تا 18 سال کے بیچ گروپس کے مطابق کیا جائے گا۔ نئے نظام کے تحت 12 سال کی اسکولنگ ہوگی، جن میں 3 سال آنگن واڑی اور پری اسکول کے ہوں گے۔ اتر پردیش اسٹیٹ سنی وقف بورڈ کے صدر ظفر احمد فاروقی نے ایودھیا میں 5 ایکڑ زمین پر مسجد کی تعمیر کے لیے ٹرسٹ کی تشکیل کا اعلان کیا۔ بورڈ کے صدر نے کہا کہ وہ ٹرسٹ کے صدر نشین اور چیف ٹرسٹی ہوں گے۔ فاروقی نے PTI کو بتایا کہ ہم نے ٹرسٹ کا نام انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن رکھا ہے۔ یہ ٹرسٹ ایودھیا کے دھنی پور گاؤں میں الاٹ کردہ 5 ایکڑ اراضی پر مسجد کی تعمیر، انڈو اسلامک ریسرچ سینٹر، لائبریری اور ہاسپٹل کی نگرانی کرے گا۔ بورڈ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ٹرسٹ میں زیادہ سے زیادہ 15 ٹرسٹیز ہوں گے۔ مہاراشٹر حکومت نے کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر ریاست میں لاک ڈاؤن 31 اگست تک بڑھا دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سنجے کمار نے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور بتایا کہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی اقدام کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل کونسل آف انڈیا سے سوال کیا کہ وہ کیوں نیٹ کا آن لائن امتحان منعقد نہیں کر سکتی۔ عدالت نے کونسل کو مشرق سطح میں مقیم 4000 سے زائد نیٹ امیدواروں کے سرپرستوں کی جانب سے داخل کردہ پٹیشن کا جواب دینے کی بھی ہدایت دی۔ ان سرپرستوں نے یہ ہدایت دینے کی خواہش کی تھی کہ یا تو آن لائن امتحان منعقد کر دیا جائے یا کووڈ-19 کی وجہ سے ان ممالک میں مراکز قائم کیے جائیں۔ سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز نے انکم ٹیکس ریٹرنز داخل کرنے کی تاریخ میں 30 سپٹمبر تک توسیع کر دی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ عید الاضحیٰ کے لیے اب چند ہی گھنٹے بچے ہیں، مگر قربانی کے تعلق سے پیدا شدہ سنگین مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ مہاراشٹر کی سرحد پر اور چیک ناکوں پر بکروں سے لدے ٹرکوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہے، جنہیں ریاست میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ بھوک پیاس اور طویل سفر کے سبب بکروں کی اموات ہو رہی ہے اور شہر میں فریضہ قربانی کی ادائیگی سے متعلق تشویش پیدا ہونے لگی ہے۔ ان سنگین مسائل کے خلاف تمام مسالک کے علماء اور ملی تنظیموں کے نمائندوں نے بیک زبان ہو کر آواز بلند کی اور زوم ایپ کے ذریعے آن لائن پریس کانفرنس کی، جس میں حکومت کے رویے اور مسلم لیڈران پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ اتنے خراب حالات تو BJP کے اقتدار والی ریاستوں میں بھی نہیں ہیں، جیسے سیکولر کہلانے والی مہاراشٹر حکومت میں ہے۔ گاڑیوں کو چھوڑنے، علاقائی سطح پر چھوٹی چھوٹی منڈیوں کی اجازت دینے اور دیونار میں بڑے جانور کی قربانی کا نظم کرنے کے مطالبے کے ساتھ ہی پریس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے ملاقات کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان کو بھی ان سنگین مسائل سے آگاہ کروایا جا سکے۔ ہندوستان نے ہمہ مقصدی جنگی طیارے رافیل کی پہلی کھیپ کا زبردست استقبال کیا، جن سے چین کے ساتھ لداخ میں کشیدگی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں تلخیوں کے درمیان ملک کی فضائی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ طیارہ بہترین ریکارڈ رکھتا ہے اور دنیا کے زبردست جنگی طیاروں میں سے ایک ہے۔ طیاروں کی یہ کھیپ چہارشنبے کی صبح امبالہ ایئر فورس بیس پر اتری، جہاں زبردست استقبال کیا گیا۔ ہندوستان نے تقریباً 4 سال پہلے 36 رافیل طیاروں کے حصول کے لیے فرانس کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں سے ایودھیا میں ہونے والی بھومی پوجن، بقرعید اور یوم آزادی کے پیش نظر اتر پردیش میں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بھومی پوجن سے قبل مرکزی خفیہ ایجنسیوں نے وہاں پر دہشت گردانہ حملے کے الرٹ بھی جاری کیا ہے، جس کے بعد ایودھیا اور اس کے آس پاس کے اضلاع میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔
ADG लखनऊ SN साबित ने अयोध्या का मुआयना करने गए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या और आसपास के अजला में पुलिस को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। बकरीद, भूमि पूजन और यौम आज़ादी के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया गया है। ईद उल अजहा के मौके पर मिल्लत के हर फर्द की ख्वाहिश होती है कि वो अपने वतन में रहें और अपने अहल खाना के साथ ईद मनाएं। ये ख्वाहिश गैर मुल्की जमातियों की भी थी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी क्योंकि तमाम तर कानूनी चाराजोई के बावजूद इनके वतन वापस जाने की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी। ताहम यह खुशी की बात है कि इन्हें काफ़ी राहत मिल चुकी है और वो जल्द वतन वापस जा सकेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में 33 मुल्कों के 34 फरीकीन की तरफ से दाखिल की गई पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत की। समाअत के बाद 34 में से 23 फरीकीन को वतन वापस जाने की इजाज़त मिल गई और इनके मुकदमात का फैसला कर दिया गया, जबकि माबाकी फरीकीन की समाअत अब 31 जुलाई यानी जुम्मे को होगी। वाज़ रहे कि 25 मार्च 2020 को कोरोना के सबब मुल्क भर में लॉकडाउन कर दिया गया था। लॉकडाउन के सबब तबलीगी जमात के करीब 2500 लोग मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली में फंस गए थे और इन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की, जबकि तबलीगी जमात की तरफ से कहा जा रहा था कि इतने लोग यहाँ हमेशा रहते हैं। PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जहाँ पाकिस्तान बुजुर्ग अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी को आला सिविलियन अवार्ड देने का इरादा रखता है, वहीं हुकूमत हिंद जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत को बदनाम और तबाह करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम क़यादत इन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने 70 साल तक हिंदुस्तान के लिए जद्दोजहद की है। बॉलीवुड अदाकारा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत खुदकशी केस को पटना से मुंबई मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेश की है। अलावा उन्होंने बिहार पुलिस की जानिब से तहकीकात रोक देने का भी मुतालबा किया। सुशांत के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके फर्जंद सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। वाज़ के सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के बांद्रा में वाक़ अपने अपार्टमेंट में लटके हुए पाए गए थे। आम तौर पर कोई 25 लाख मुसलमान जिनका ताल्लुक दुनिया के कई ममालिक से होता था हज की सआदत हासिल करते थे, लेकिन इस मरतबा आलमी वबा के बाद बैरूनी ममालिक से आज़मीन हज को आने की इजाज़त नहीं दी गई और सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले मुंतखब गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों को ही यह मौका मैसर हुआ है। इनमें तकरीबन 70% का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है जो सऊदी अरब में मुकीम है, जबकि माबाकी 30% सऊदी शहरी हैं। मुंतखब आज़मीन हज को एक सख्त अमल से गुजरना पड़ा। मनासिक हज के आगाज़ पर भी इनके दर्जे हरारत की जाँच की गई। मक्का पहुंचने से पहले इन्हें क्वारंटाइन में रहना पड़ा। मक्का आमद पर हेल्थ वर्कर्स ने उनके सामान को सैनिटाइज किया। काबतुल्लाह के अतराफ हदबंदी की गई और इस मरतबा किसी भी आज़िम हज को काबतुल्लाह को छूने या चूमने की इजाज़त नहीं है। मुनासिक हज के मुकामात पर मराकिज़ सेहत कायम किए गए हैं और आज़मीन हज का ख्याल रखने के लिए मोबाइल क्लिनिक्स और एम्बुलेंस गाड़ियों का भी इंतज़ाम है। आज़मीन हज को इस मुनफरिद हज के दौरान कई हिदायत पर अमल करना पड़ रहा है, जिनमें मास्क पहनना और समाजी दूरी पर अमल करना शामिल है। मक्का आमद से कबल तमाम आज़मीन का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के बाद भी उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। यमन की हुकूमत और जनूबी उबूरी कौंसिल ने सऊदी अरब की तजावीज़ को कबूल कर लिया है, जिसका मकसद रियाद मुआहदे पर तेज़ी से अमल दरामद करना है। आला सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इन तजावीज़ में 22 जून से नाफिज जंग बंदी पर अमल को आगे भी बढ़ाना, रियाद मुआहदे के तहत शराकत इख्तिदार के हक़ में जनूबी उबूरी कौंसिल का अपनी हुक्मरानी से दस्तबरदारी का ऐलान और अदन गवर्नरेट के लिए एक गवर्नर और सिक्योरिटी डायरेक्टर मुकर्रर करना शामिल है। इन तजावीज़ के तहत यमन के वज़ीर-ए-आज़म 30 दिन में शुमाली और जनूबी यमन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत तश्कील देंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि रियासत की ईदगाहों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं रहेगी क्योंकि बड़े पैमाने पर इज्तिमा की सूरत में कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से आज बकरीद के सिलसिले में रहनुमाना खुतूत जारी किए गए, जिसमें अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो अपने मकानात में नमाज ईद अदा करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक मसाजिद में सिर्फ 50 मुसल्लियों के साथ नमाज की अदायगी की इजाज़त रहेगी। मुसल्लियों के दरमियान 2 मीटर का फासला होना चाहिए। अगर मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा है तो 2 मरहलों में नमाज ईद अदा की जाए। हर मुसल्ली बावजू और अपनी जानेमाज के साथ मस्जिद पहुंचे। मसाजिद कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो मसाजिद के बाबू दाखिले और अंदरून हिस्से में सैनिटाइज करें। मुसल्लियों के हाथ साबुन या सैनिटाइजर से साफ किए जाएं। इमाम और खतीब से दरख्वास्त की गई है कि वो मुख्तसर खुतबा ईद दे। सीनियर सिटीजन और बच्चों को मसाजिद आने से गुरेज करना चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की शहादत के 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इन मसाजिद की तामीर के सिलसिले में कोई पेशरफ न होने पर मुसलमानों की बेचैनी और गम व गुस्से में बेइंतहा इजाफा हुआ है। दोनों मसाजिद के मसले पर उलमा, मशाइख और कायदीन के बयान के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इजहार तासुफ किया था, लेकिन इस वक्त अकाबिरीन की जानिब से ये बात वाज़े कर दी गई थी कि मुसलमान सिर्फ इजहार पेशुमानी को कबूल नहीं करेंगे। शहीद मसाजिद मुकर्ररा मुद्दत में दोबारा इसी मुकाम पर तामीर की जाए, लेकिन हुकूमत की खामोशी से ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत भी कांग्रेस की रोश इख्तियार कर चुकी है।
मौजूदा हुकूमत के पास भी मसाजिद के तक़द्दुस और मुसलमानों के जज्बात और एहसासात की कोई अहमियत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर मुसलमान अपनी इबादत गाहों की बाजियाबी के लिए जमहूरी एहतजाजी लाही अमल को खतियत देंगे। इस हसास मसले पर मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। चीफ मिनिस्टर इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मुसलमान कभी भी मस्जिद के मसले पर खामोश नहीं बैठ सकते। कांग्रेस ने एक गलती की थी जिसको आज तक मुसलमानों के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के वजीर सेहत एटला राजेंद्र ने बताया कि रियासत भर में जुमला 1100 मराकिज पर कोरोना के मुआयने किए जा रहे हैं। उन्होंने कोठी कमांड कंट्रोल सेंटर पर मोबाइल लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया और यहाँ बैक वक्त 10 अफराद के मुआयने किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये मोबाइल वैन कंटेनमेंट जोन में खिदमात अंजाम देगी। वजीर सेहत ने कोरोना टेस्ट करने वाली मोबाइल वैन का मुशाहिदा किया और इसकी इफादियत और कारकर्दगी पर डॉक्टर से बातचीत की। कोरोना के सिलसिले में आम रुझान है कि वो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, लेकिन महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। रियासत के जुमला पॉजिटिव केसेस में 65% मरीजों की उम्र 21 से 50 साल के दरमियान है। कम उम्र अफराद के वायरस के फैलाव में इजाफे पर हाईकोर्ट ने तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को हिदायत दी कि वो ज़्यादा तशहीर करें कि कम उम्र के अफराद कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। आम तौर पर 10 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कोरोना फैलने की तशहीर की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार तशवीश का बास है, लिहाजा नौजवानों को कोरोना से चौकस करने मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के कदोकाल और इसमें तब्दीलियों से मुतालिक एक अहम जायजा इजलास मुनक़िद किया। प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि सेक्रेटेरिएट के नए कॉम्प्लेक्स में ऐसी तब्दीलियां की जाए जिसके जरिए सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन इत्मीनान के साथ काम कर सकें और सेक्रेटेरिएट से रुजू होने वालों को भी सहूलत हो सके। रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, मुशीरान तमाम के लिए अलहदा चैम्बर्स कायम किए जाए। मुतालिका महकमों के तमाम आला ओहदेदारों को एक ही फ्लोर पर रखा जाए। मीटिंग हॉल, डाइनिंग हॉल, सेक्रेटेरिएट को आने वाले विजिटर्स के वेटिंग हॉल के अलावा तमाम गाड़ियों की पार्किंग की भी बेहतर सहूलत फराहम की जाए।